राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी राधा जय राधा माधवा कुंज विहारी राधा माधवा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री श्री राधा माधव की जय। Hare Krishna. Today we are very, very fortunate to have the association of His Grace Keshavananda Prabhu. So let me take this opportunity to introduce Prabhuji. So Prabhuji has studied his MBBS from Manipal University. And those days Manipal was very, very popular for medicine and very rich people go there. And there Prabhuji got introduced to Krishna consciousness and he took it so seriously and practically alone he was going for Nagar Sankirtan and doing Harinam Kirtan, and then he started the preaching work from there. So I met Prabhu first time in 2001. One of the earliest disciples of His Holiness Bhaktivikasa Swami Maharaj. Okay, where did we meet? In Baroda, Prabhuji. Acha. So, and from the beginning, he was sometimes he was coming to Bangalore, Manipal for preaching, and later on he was preaching for a very long time in Delhi, and then he set up a farm community in Punjab state, Badrika Ashram. So there he is running that community very successfully, and he is very, very popular on
YouTube, many lectures he presents about Gaudiya Vaishnava philosophy in social media also, and inspires lakhs of people. He travels abroad also and preaches Krishna consciousness. So he is one of the biggest assets of International Society for Krishna Consciousness, our movement. And now he is here in Hyderabad for recordings on various topics. He is making videos on various topics, and they are going to be posted in YouTube and different other channels. So many people will get a chance to watch our philosophy in their purified form. So Prabhuji is putting lot of efforts in that direction, and very staunch and sincere follower of His Holiness Bhakti Vikasa Swami Maharaj, who is follower of Srila Prabhupada. So I thank Prabhu for taking out time and coming over here, and we can also pay our full attention to get full benefit out of his lecture. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, thank you for calling me Radhakant. So yeah, I think which is the verse? Can you tell me? 1:18:30. अच्छा यहाँ पे मैं और okay, I think I'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Canto first, मतलब हम हिंदी में ना, हाँ हिंदी में हम स्कंद 1 अध्याय 18, ये तो इंग्लिश में है मगर, अच्छा अध्याय 18 और श्लोक संख्या 30। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासूम उरुगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोटया निधाय पुरम् आगतः। What should I do? English में? In English, हाँ? चलो। इन हिंदी, अच्छा चलो। सह राजा, वो तो ये तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तू लेकिन ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण का अंशे उनके कंधे पर, मैं खुद ही कर रहा हूँ मैं, गतासूम जीवन रहित, उरुगम सांप, एक्चुअली सर्प, या सांप तो गंदा वर्ड है, सर्प होना चाहिए। या थैंक यू फॉर, हाँ ओके, या सर्प ही लिखा है। रुषा क्रोध में, विनिर्गच्छन् जाते हुए, धनुः कोटया धनुष के अग्रभाग से, निधाया रखकर, पुरम महल को, महल को, आगतः वापस आए। मेरी हिंदी खराब हो गई हैदराबाद में रह रहकर, महल को कह रहा हूँ महल को होना चाहिए। Anyway, इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसके क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट गए। समझ आ रहा है ना सबको? आ रहा है? मेरी हिंदी ठीक है ना? तात्पर्य, राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया। यदि भी वह इस प्रकार की अल्प अज्ञता पूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने पास एक मरा हुआ सांप देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार अपमानित या उपेक्षित समझा है, अपमानित किया है,
यदि उनके गले में मरा हुआ सांप की माला पहना दी जाए तो वह इस प्रकार उपेक्षित अपमानित हो जाएंगे। सामान्य व्यवहार में अधिक अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से ठीक नहीं था। यह श्री भगवान की इच्छा से ही हुआ। That's it. Okay. I think I'll start now. टाइम क्या है यार? ये वॉच करने के लिए वॉच। अच्छा वो है ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। I'll just begin, टाइम नहीं होगा फिर। So ये जो श्लोक है, इस श्लोक में एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि परीक्षित महाराज ने प्रभुपाद लिख रहे टिट फॉर टैट। मतलब जो परीक्षित महाराज आश्रम में गए और आश्रम में गए शुक्ताल में, तो वहाँ गए तो वहाँ पे ये मुनि जो थे अपने बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, और परीक्षित महाराज ने पानी मांगा उनसे क्योंकि वो अपने ट्रांस में थे, समाधि में, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने मरा हुआ सांप लिया और उनके गले में डाल दिया। अब ये थोड़ा अजीब है, अगर सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि परीक्षित महाराज ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज भागवतम में आता है, शुरू में भागवतम में तभी एक्सप्लेन किया है, परीक्षित महाराज का नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में किए हैं ना। अपनी माँ, परीक्षित महाराज की मदर कौन है? उत्तरा। जब वो पैदा हुए तो परीक्षा कर रहे थे कृष्णा का है, ही वॉज सीइंग, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। और बचपन से उनके टॉयज भी कृष्णा के थे। ही वॉज अ प्योर डिवोटी बेसिकली। और शुद्ध भक्त ऐसा करे ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं, ये तो ऑर्डिनरी आदमी करेगा, भाई मैंने पानी नहीं दिया, लो सांप रख दो। ये तो ऑर्डिनरी आदमी भी नहीं करेगा। सांप कौन रखता है किसी गले में? सो समथिंग हैपेंड। श्रीला प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि जो कभी कभी कुछ चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती, अगर वो हो जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। मतलब किसी सेंट से, स्पेशली परीक्षित से, और स्पेशली किंग जो राजा है, राजा के लिए ब्राह्मण पूजनीय है। राजा कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से अपमान करके चले जाना, इसका मतलब है कि तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस हैपेंड बाय द विल ऑफ लॉर्ड। भगवान की इच्छा से ये इंसिडेंस हुआ है। इसीलिए इस श्लोक में लिख रहे हैं स तू, ये जो वर्ड है तू वर्ड है, यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो तू वर्ड है इसको संस्कृत में बोलते हैं एपिथेट। ऐसे तू, च समझते हो आप? च संस्कृत में क्या होता है? और ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब तू पढ़ोगे ठीक है, लेकिन हाउएवर, बट एक्चुअली संस्कृत में क्या है? संस्कृत में जो लोग कमेंट्रीज लिखते हैं, टीका लिखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं, उनके लिए ये जो एपिथेट्स हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री पढ़ो, बलदेव विद्याभूषण की, वो इन छोटे छोटे वर्ड्स पे ही बहुत कमेंट कर रहे हैं कि भगवान ने च क्यों बोला। सर्वस्य हम कैसे? सर्वस्य हम च भी आता है? नहीं, सर्वस्य हम सन्निविष्टे हो। सर्वस्य च हम सन्निविष्ट हो। तो च पे च क्यों लाए यहाँ पे? और मैं सबके हृदय में हूँ। अब और पे वो कमेंटेटर बोलता रहेगा, आप सोचते रहोगे यार च के पीछे पड़ गए। बट संस्कृत में शब्द, इतने शब्दों की तो इम्पोर्टेंस है, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये वर्ड्स की, तू की, क्योंकि इसके अंदर कुछ छिपा हुआ मैसेज है। और संस्कृत में स्पेशली साइलेंस की इम्पोर्टेंस है।
जहाँ कुछ नहीं बोला गया वहाँ पे बहुत कुछ बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विष्णु सहस्त्रनाम सुना है ना, यहाँ साउथ में विष्णु सहस्त्रनाम तो फेमस ही है ना। तो विश्वम, विष्णु वषटकार है ना, तो आप विश्वम बोलो। अब विश्वम जब आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? भगवान का एक नाम है ना विष्णु का। विश्वम मतलब जो सारे संसार में विद्यमान है। इसके कई मतलब हैं। विष्णु सहस्त्रनाम के हर नाम का 1000 मतलब है, हर नाम के। एक्चुअली महाभारत के हर श्लोक के 1000 मतलब है। और अगर आप मतलब गीता किसका पाठ है? महाभारत कौन से उसका? भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व का भाग है गीता। और महाभारत, क्योंकि महाभारत का पाठ है गीता, इसलिए गीता के हर श्लोक के 1000 मतलब है। अब श्रीला प्रभुपाद ने तो एक मीनिंग दिया है, हमें एक एंगल से दिया है। विश्वाचक्र ठाकुर ने दूसरे एंगल से दिया है। आप कमेंट्रीज पढ़ो, डिफरेंट एंगल है। सो 2 एंगल हो गए। बलदेव विद्याभूषण ने तो विश्वाचक्र ठाकुर की कमेंट्री पे टिप्पणी की है, कमेंट्री पे कमेंट्री। सो दैट्स द सेम एंगल। मध्वाचार्य ने किसी और एंगल से दिया, रामानुचार्य ने किसी और एंगल से। ऐसे 1000 एंगल्स हैं एक श्लोक को देखने के। अब वो एंगल्स निकलते कहाँ से हैं? इतने सारे तरीके। पहली बात तो आप गीता पूरी लाइफ पढ़ते रहोगे तब भी खत्म नहीं होगी। भागवतम, क्योंकि हर श्लोक के 1000 मतलब है, क्या करोगे आप? अब वो 1000 मतलब कहाँ है? 4-5 कमेंटेटर्स हैं, उससे आपको 4-5 एंगल्स तो मिल जाएंगे। मगर जैसे जैसे हम भक्ति में इवॉल्व करेंगे, भगवान की प्रेरणा से अपने आप वो मीनिंग्स आपके हार्ट में रिवील होंगे, अपने आप हो जाएंगे। अब वो सही है गलत है वो फिर भगवान आपको शास्त्रों में उसका प्रमाण भी दिखा देंगे। नॉलेज एंड कॉग्निशन, ज्ञान और विज्ञान। कौन सा श्लोक है? किसी को पता है गीता का कौन सा श्लोक है? ज्ञान विज्ञान। हाँ, 7.2 ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। सो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं नॉलेज दे रहा हूं, विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान है नॉलेज का प्रूफ। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल में उसको हम टेस्ट करते हैं ना, थ्योरी को, प्रूफ को। सो इसीलिए ये अलग अलग मतलब कहाँ से आते हैं? ये इस शब्द से आते हैं, तू से, च से, वहाँ से मतलब आते हैं। सो जो यहाँ पे वर्ड है तू, क्यों कह रहे हैं लेकिन? लेकिन क्यों कह रहे हैं? लेकिन इसलिए कह रहे हैं वेल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, परीक्षित महाराज गए लेकिन उनका दिमाग खराब हो गया वहाँ पर। ही गॉट मैड, उन्होंने सांप रख दिया गले में। ब्रह्म ऋषि, नाउ व्हाट्स द वर्ड हियर? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि क्या होता है? ब्राह्मण ऋषि। आपने गीता में श्लोक सुना है राज ऋषि? क्या क्या कौन सा श्लोक है? 9 चैप्टर, क्या वर्स है? मेरे माइंड पता नहीं क्या हो गया। कैसे श्लोक है? राज विद्या राज गुह्यम। तो राज विद्या, राज ऋषि, उससे ब्राह्मण ऋषि एक ही बात है। सो क्या कह रहे हैं? एक होता है ब्राह्मण, एक होता है ऋषि। डिफरेंस पता है किसी को यहाँ पर ब्राह्मण और ऋषि में? ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, ये 3 शब्द हैं। प्रभुपाद आई थिंक फर्स्ट कैंटो में, सेकंड कैंटो में कहीं लिख रहे हैं। ब्राह्मण होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो भगवान को जानता है ना, मगर जानता है सिर्फ, जानाति। वैष्णव कौन है? वैष्णव है जो भगवान की सेवा करता है जानकर, इसलिए ब्राह्मण से ऊपर कौन हो गया? वैष्णव। वो एटलीस्ट हम अपनी फिलॉसफी में मानते हैं। कुछ लोग वैष्णव होते हैं मगर ब्राह्मण नहीं होते, कुछ लोग वैष्णव होते हैं और जानवर भी होते हैं ऐसा भी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। बट वैष्णव शुड बी अ ब्राह्मण, ब्राह्मण शुड बी अ ह्यूमन। पहले मनुष्य, फिर ब्राह्मण, फिर वैष्णव। मनु संहिता में ऐसा लिखा है। सो ब्राह्मण मतलब जो जानता है भगवान को, कहने का मतलब है कि भगवान की नॉलेज है उसके पास। मुनि क्या होता है? मुनि होता है फिलॉसफर, मनन, जरूरी नहीं स्पेकुलेटर हो। नारद मुनि, नारद मुनि है फिलॉसफर,
कनाद मुनि, गौतम मुनि ने न्याय फिलॉसफी दी, कनाद मुनि ने वैशेषिका दी, कपिल मुनि सांख्या, फिलॉसफर हैं, वो बैठ के फिलॉसफी सोचते हैं थ्योरी में। ये फिलॉसफी, ऑफ कोर्स फिलॉसफी रियलिटी से कनेक्टेड है, ऐसी बात नहीं है। और ऋषि होता है जो कि साइंटिस्ट होते हैं, जो कुछ ढूंढते हैं संसार में। ऋषि मतलब ऋक धातु से देखना, टू सी। सो वो जैसे साइंटिस्ट लॉज नहीं देखते संसार में, नेचुरल लॉज, ग्रेविटेशन लॉज, तो ऋषि लोग कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कश्यप ऋषि भी हैं, कश्यप मुनि भी है, कश्यप ऋषि भी है। कश्यप जी ने फिलॉसफी भी दी है, ऋषि भी है। ऋषि क्यों है? कश्यप साइंटिस्ट भी हैं। कश्यप मुनि ने एक किताब लिखी, किसी को पता है कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? एनीवे, कश्यप मुनि ने प्रसूति संहिता लिखी है, उसके अंदर गायनेकोलॉजी है और पीडियाट्रिक्स है। अब बताओ, पराशर ऋषि है, पराशर मुनि है? व्हाट डू यू से? पराशर दोनों है, मुनि भी है ऋषि भी है। पराशर मुनि है क्योंकि विष्णु पुराण लिखा है, पराशर ऋषि है क्योंकि कृषि शास्त्र लिखा है। सी ऋषि मतलब साइंटिस्ट, मुनि मतलब फिलोसोफर, ब्राह्मण मतलब स्पिरिचुअलिस्ट। 3 चीजें हो गई। अब ये जो बैठे थे वहां पर, एक्चुअली कौन बैठे थे? मुनि का नाम मैं भूल गया, इनका नाम क्या था? हाँ, शमीक ऋषि। शमीक ऋषि ब्राह्मण भी हैं और ऋषि भी हैं, दैट्स वाई दे सिंग ब्राह्मण ऋषि। दैट मीन्स शम्यक ऋषि जो है वो स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, प्लस उन्होंने कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन भी की है, हमें नहीं पता क्या की है। पीडियाट्रिक फील्ड में की होगी, फिजिक्स में की होगी, मुझे नहीं पता। नारद कौन है? मुनि भी है और नारद ऋषि भी है ना? नारद मुनि क्यों है? उन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी है? पांचरात्रिक विधि, भक्ति के आचार्य है ना? आसितो देवल व्यासा स्वयं चैव प्रवेशी में। कृष्णा अर्जुन कह रहा है ना गीता में कि भगवान आपने बताया भगवान है, मगर इससे पहले नारद मुनि ने बताया, आसितो देवला ने बताया और व्यास ने। 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, गीता में आ रहा है ना। तो नारद मुनि कौन है? भक्ति के आचार्य। आसितो देवला कौन है? धर्म के आचार्य। और व्यासदेव कौन है? ज्ञान के आचार्य। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों कह रहे हैं कि कृष्णा भगवान है ही। तो नारद मुनि भी है क्योंकि भक्ति की फिलॉसफी दी है। भक्ति कौन सा है? नारद भक्ति सूत्र हमारे इस्कॉन में ही है ना। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से, और ऋषि क्यों है? ऋषि है क्योंकि उन्होंने पंचरात्र विधि, प्रैक्टिकल डीटी वर्शिप, प्लस ऋषि क्यों है? क्योंकि उन्होंने म्यूजिक का साइंस दिया है। नारद ऋषि और तंबूरा, तंबूरा पता है? हाँ, गंधर्व है ना। नारद मुनि भी गंधर्व है, उनके फ्रेंड तंबूरा है। दोनों के दोनों म्यूजिक पे रिसर्च करते हैं और म्यूजिक साइंस दी है, इसलिए ऋषि भी हैं। सो यहाँ पर ये जो शम्यक है ये ब्राह्मण है और ऋषि हैं, ब्राह्मण ऋषि, मुनि नहीं कह रहे। ही वाज नॉट अ फिलोसोफर, कंट्रीब्यूशन होगी, कुछ होगी। सो ब्रह्म ऋषि रम से, ब्रह्म ऋषि र तो चलो ऐसे लग गया, अमशे वो बैठे हुए थे अपने समाधि में। परीक्षित महाराज गए, परीक्षित महाराज ने देखा, उनसे पानी मांगा, ही डिडंट गिव। उनको समझ भी नहीं आया कि ये समाधि में है। भगवान ने उनको प्रेरणा दी। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि सांप उठाओ उनके गले में डाल दो। अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। गीता में श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, पता है किसी को? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविदेश च पृथक चेष्टा दैवम पंचमम उच्यते। किसी भी काम करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए। अब कोई भी काम, आप हाथ उठाओगे तब भी 5 चीज़ें चाहिए। इट्स सिंपल थिंग, बट 5 चाहिए। फिर हाथ उठाने में 5 चाहिए। क्या? अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब जहाँ, जो बॉडी जहाँ पे रह रहे हो आप, बॉडी में रह रहे हैं ना। कर्ता, करने वाला, मैं चाहता हूँ हाथ उठाना, मैं करने वाला हूँ। कारणम, करणम क्या है? करणम है कि मेरा हाथ, बॉडी का पार्ट। चेष्टा, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ हाथ को ऊपर करूँ। क्यों करूँ? फॉर सम रीजन। और लास्ट है दैवम, दैवम मतलब भगवान। सो भगवान पे सारे एक्शंस डिपेंडेंट है, स्वतंत्र
परतंत्र सुना है आपने, मध्वा फिलॉसफी, परतंत्र, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। सो भगवान की डिजायर से अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस संसार में जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, मगर उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। अगर कोई गलत काम, परीक्षित महाराज ने कोई ठीक काम तो किया नहीं, एक ऋषि का अपमान कर दिया और अपराध लग गया उनको, और उस अपराध की वजह से उनको शाप मिला कि 7 दिन में मृत्यु हो जाए। लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया अभी हमारे राजा को, ही बिकेम मैड और व्हाट। सो ये प्रेरणा कहाँ से? भगवान से। अच्छा काम करने की प्रेरणा कहाँ आती है? भगवान से। सो सारी चीज़ें सर्व कारण कारणम भगवान से आती हैं, बट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। हमारी इच्छा देखकर हमें इंस्पायर करते हैं। परीक्षित महाराज के केस में, प्योर डिवोटी के केस में, उनकी अपनी इच्छा कुछ नहीं होती, भगवान अपनी इच्छा से उनको इंस्पायर करते रहते हैं और ले जाते रहते हैं जहाँ ले जाना है। सो हमारे केस में अगर मान लीजिए कोई खून करे, उसको खून करने की प्रेरणा किसने दी है? कौन दे रहे हैं? हाँ, कृष्ण ही दे रहे हैं। तो वो कह सकता है भाई मेरे को भगवान ने प्रेरणा दी, मैंने खून कर दिया, मुझे क्यों फांसी लगा रहे हो? दैट्स अ होल पॉइंट। पर कृष्ण ही दे रहे हैं प्रेरणा, सबको भगवान ही प्रेरणा देते हैं। उसको खून करने की प्रेरणा भगवान देंगे, उसको बुद्धि भी भगवान देंगे। तुम खून करना चाहते हो, ठीक है, बुद्धि लो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, बेस्ट नाइफ ले लो, बेस्ट पिस्तौल ले लो और शूट कर दो उसको। अब आप कहोगे भगवान उसको इतना गंदा काम करने के लिए क्यों इंस्पायर कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहता है, पिछले जन्मों से भगवान ने देखा उसके हृदय में इच्छा है शूट करने की, तो भगवान ने उसको प्रेरणा दे दी। अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एक लेटर में कि हिटलर, नेपोलियन, पता है ना, गंदे लोग थे, कितने लोगों को 60,000 ज्यूस को भून डाला उसने, मतलब मुर्गियों की तरह। हिटलर को प्रेरणा किसने दी? मारने की। अब ये आप बोलोगे गॉड ने, तो लड़ाई हो जाएगी संसार में। ही इज अ बैड मैन। बट कोई भी कहीं भी पहुंचता है भगवान की कृपा से ही। वो बात है कि हिटलर की इच्छा थी करने की, भगवान ने इंस्पायर कर दिया। सिंपल एग्जांपल है, जैसे माँ है, माँ के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कहेगा मुझे भाई साइंटिस्ट बनना है, माँ कहेगी ठीक है, पैसे दे, फादर मदर कहेंगे पैसे देते हैं, पढ़ा देंगे। दूसरा बच्चा कहेगा मुझे म्यूजिशियन बनना है, ठीक है अभी बन जा। तीसरा बच्चा कहेगा मुझे पुलिस में जाना है, बन जा। चौथा बच्चा कहेगा मुझे गुंडा बनना है। तो माँ बाप क्या बोलेंगे बच्चे को? पहले तो काउंसलिंग करेंगे, भाई गुंडा मुंडा क्या बन रहा है, तू मेरी नाक कटवाएगा, बेइज्जती कराएगा तू मेरी। मगर वो कहेगा नहीं मुझे तो गुंडा ही बनना है, मैं तो यही करना चाहता हूँ, ये वो दैट्स ऑल। तो फिर क्या करेंगे पेरेंट्स? ठीक है भी तेरी इच्छा, क्या करें। जैसे फुल टाइम नहीं बनते हम लोग, ब्रह्मचारी। हम पेरेंट्स से कहते हैं ब्रह्मचारी बनना है, पेरेंट्स कौन मानेगा? कहेंगे क्या है, लाइफ वेस्ट करोगे भैया, कैरियर बनाओ, सेटल हो। अगर हम पीछे ही पड़े रहेंगे, नहीं हमें तो ब्रह्मचारी बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, तो क्या करेंगे पेरेंट्स? ठीक है भी जाओ, फिर आशीर्वाद लो, जाओ। ऐसे ही है। सो भगवान भी ऐसी है, भगवान रोकते नहीं किसी को, भगवान करने देंगे और खुद सीखने देंगे। ये आइडिया है। तुम करना चाहते हो ना खराब काम, करो, उसका कॉन्सिक्वेंस देखो और खुद सीखो, क्योंकि उससे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। सुना है गीता का श्लोक? क्या है पूरा श्लोक? जनाना विदुर असुरहा। जो गंदे लोग होते हैं, असुर होते हैं, उनको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। सही गलत का विवेक, इसकी इंटेलिजेंस भगवान हमें देना चाहते हैं। भगवान ये भी कर सकते हैं कि हमें गलत काम करने से रोक दें। नहीं, अगर आप कहोगे भगवान इतने मर्सीफुल हैं, रोक दें गलत काम करने से, होने क्यों दे रहे हैं? कोई शूट करने आ रहा है, रोक दें उसको, प्रकट ही हो जाए, रुक जाओ अभी गलत काम कर रहे हो। ही कैन एडजस्ट एवरीथिंग, बट ही डजंट डू दैट। भगवान महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, बल्कि जब कृष्णा महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो मतलब तो रूट में राजस्थान आया। राजस्थान अभी भी आते हैं नहीं, राजस्थान गुजरात। तो राजस्थान में उनको एक ऋषि मिले, कंडू ऋषि, सुना है?
तो कंडू ऋषि ने भगवान को रोका, उन्होंने कहा कृष्णा, प्रणाम किया सब, तो उन्होंने कहा मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। तो उन्होंने बोला बोलो। तो कंडू ऋषि ने कहा कि आपने युद्ध होने कैसे दिया ये? आप तो भगवान हैं, आप तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आप तो रोक सकते थे। इतने सारे इनोसेंट लोगों की हत्या हो गई, फालतू में पांडव और कौरवों की लड़ाई के बीच में इतने सारे लोग मर गए, खून खराबा हो गया, 19 अक्षोणी सेना खत्म हो गए, एनिमल्स मर गए बेचारे, आपने देखा कैसे? आप इसको रोक देते। मगर भगवान ने कहा कि मैंने महाभारत के युद्ध, भगवान हंसे, भगवान मैंने कंडू ऋषि तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, एक कारण से मैंने नहीं रोका महाभारत युद्ध। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका युद्ध? क्योंकि भगवान किसी चीज में रोकते नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सबकी बुद्धि अपने आप डेवलप हो, अपने आप आए। तो बच्चा कहेगा मुझे ब्रह्मचारी बनना है, माँ कहेंगे बन के देख लो भाई, जब पिलोगे तो आ जाना, हमारा गेट तो खुला ही हुआ है, घर आ जाना वापस, जब दुख मिलेगा आ जाना, वैसे चलते हो तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद सीखो, खुद सीखो। भगवान स्पून फीडिंग नहीं करते, भगवान सब कुछ ऐसे। अभी कृष्णा आप कह सकते हो कृष्णा प्लीज़ हमें हमारी लाइफ सही कर दीजिए, भगवान कहेंगे नहीं मैं सही नहीं करूँगा, तुम ही सही करोगे, मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा डिवोटीज के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, मगर खुद सही करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। विवेक, मैच्योरिटी, इसको मैच्योरिटी कहते हैं नहीं इंग्लिश में। जैसे पहले ज़माने में अगर किसी को मैच्योर बनाना होता था, जैसे बच्चे नहीं होते लफंडर होते हैं, यूथ में घूम रहे हैं बाइक पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो पहले ज़माने में अगर मैच्योर बनाना होता था तो पेरेंट्स कहते थे शादी कर दो इसकी। होता है नहीं, होता है नहीं, होता है ऐसी क्या पता है? आप ब्रह्मचारी हो, यू आर ब्रह्मचारी हियर, or you are unmarried, I know. Yeah. So if you want to become mature, marry. शादी के बिना मैच्योर नहीं बनते, मतलब रियली मैं आई मीन टू से इन रियल सेंस। इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं थोड़े स्पेस आउट रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ पता रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कम होती है। बट मैरिज के बाद वाइफ बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिल डाई। संसार में रहोगे कैसे? लोग खा जाएंगे आपको। इसीलिए भगवान हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, इसीलिए गृहस्थ आश्रम बनाया है। वरना भगवान कह देते सब ब्रह्मचारी बन जाओ, औरत बनाते ही नहीं। आप कहोगे बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चे पैदा हो कान से हो जाएंगे, कर्ण हो गया, नाक से हो जाएंगे, वरादेव हो गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इट डजंट रियली, कृष्णा कैन डू एनीथिंग, बट ही मेड गृहस्थ आश्रम। जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है लाइफ में, उनको गृहस्थ आश्रम के थ्रू जाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल समझते हो ना आप लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कैसे कहेंगे रिस्पॉन्सिबल? समझ आ रहा है ना रिस्पॉन्सिबल सबको है? जिम्मेदारी हैदराबाद। और फिर गृहस्थ आश्रम के रिस्पॉन्सिबल उनके, फिर उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास। एक सिस्टम ये है, मगर जो पिछले जन्मों से पहले से ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ब्रह्मचारी के बाद सीधा संन्यास हो जाता है। पिछले लाइफ में उसने हाउस होल्ड लाइफ जी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके अंदर। बट जो भी इस संसार में हो रहा है सब इसलिए हो रहा है कि हमारे पास विवेक आ जाए। मनु संहिता में यही लिखा है, विवेक। विवेक बुद्धि से अलग होता है। मैंने बहुत सारे IITian देखे हैं, मगर एब्सोल्युटली ठस। मतलब आप हमारे मतलब चौपाटी में कितने सारे IITian हैं, डिपेंड करते हैं। हम चौपाटी, मैं तो रहा हूँ चौपाटी टेम्पल में बहुत काफ़ी साल शुरू में, तो इंजीनियर्स हैं और मेरे पास भी हैं, हमारे यूथ्स हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं, सब हैं। बट ज़रूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, मगर विवेक अलग चीज़ है। विवेक होता है मैच्योरिटी। घर में एक पुत्र इंटेलिजेंट हो सकता है, IITian ये वो, मगर विवेक किसके पास होगा? उसके फादर के पास, जो ओल्ड होगा। IIT कर सकता है, पैसे कमा सकता है, वाइफ को नहीं संभाल पाएगा वो। तो फादर होंगे, वो बताएंगे भैया तू ऐसा करना है लाइफ में, वरना डाइवोर्स हो जाएगा। विवेक नहीं है, विवेक जीरो है। विवेक लाइफ के साथ आता है। और कैसे आता है विवेक? क्योंकि भगवान करने देते हैं चीज़ें, करो, सीखो।
जो करता है और सीखता नहीं उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख। और जो करने के बाद दोबारा गलती करता है उसको क्या बोलते हैं? महामूर्ख। विदुर जी कह रहे हैं महामूर्ख है। और जो करने के बाद सीख जाता है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। और जो करने से पहले ही सीख जाता है उसको विवेकी बोलते हैं। देखकर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इंटेलिजेंस। इसलिए भगवान प्रेरणा देते हैं, करो ठीक है, तुम्हें खून करना है करो, फिर देखो क्या होगा, खुद ही सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छा मेथड है सिखाने का। नहीं, इनफैक्ट इंडिया में फॉरेन एजुकेशन यही है, पता है आपको? वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंडिया एजुकेशन है कि स्पून फीडिंग करते रहो, रटवाओ, भाई रट क्या है बताओ, लिखो, पास हो। वेस्टर्न एजुकेशन में नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन फन लर्निंग है। वहाँ पे बच्चे को कोई क्विज देते हैं, करने देते हैं, गलती करता है फिर टीचर करेक्ट करता है, फिर खुद सीखता है। एंड दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ लर्निंग। सो भगवान की बहुत कृपा है कि वो हमें रोक नहीं रहे गलत काम करने से। यू सी दैट, इन दैट वे वी सी, इस तरह से हम देखते हैं। भगवान की बहुत कृपा है कि वो हमें अच्छे काम करने से भी नहीं रोक रहे, करने दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए लाइफ एक बहुत बड़ी लर्निंग है और मटेरियल वर्ल्ड एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है जहाँ पे आप सीखते हो। मगर आप सीख तभी पाओगे जब साधु संग होगा। साधु संग नहीं होगा, आप गलतियाँ करोगे तो फ्रस्ट्रेट होगे, फिर स्ट्रेस आएगा, साइकोपैथ, मैनिया, मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सीख सकते हैं हम, भगवान इसलिए शास्त्र दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, साधु हो रहे हैं। जब गलती करते हैं तो साधु बताते हैं गलती हुई है, इससे ये सीखो, ये सही काम किया है, इससे ऐसा सीखो। परीक्षित महाराज से गलती हो गई, सांप रख दिया उन्होंने, मगर बाद में परीक्षित महाराज ने उस इंसिडेंट से सीखा। क्या सीखा? परीक्षित महाराज को समझ आ गया कि ये जो मेरे साथ हुआ है, भगवान ने मुझे एक अवसर दिया है श्रीमद् भागवतम सुनने का। 7 दिन बचे हैं, अब वो सांप काटने आ जाएगा, तो अब मुझे पूरी लाइफ 7 दिन भागवतम सुनने में लगानी चाहिए। इनफैक्ट भगवान ने परीक्षित महाराज को यूज़ किया अपनी सर्विस में, भागवतम को इस संसार में प्रकट करने के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी प्रकट हो गए वहाँ। परीक्षित महाराज तो फास्ट करके बैठे हुए थे, उन्होंने कहा फास्टिंग करके मैं, भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दी, आप जाइए और जाकर परीक्षित को भागवतम सुनाइए। पूरा भगवान एक प्लानिंग की थी। हमारी सबकी लाइफ में एक प्लानिंग है भगवान की, एटलीस्ट डिवोटीज की लाइफ में। नॉन डिवोटीज की लाइफ में भी सबकी लाइफ को भगवान प्लान कर रहे हैं। नॉन डिवोटीज भगवान के प्लान को समझ नहीं पाते, डिवोटीज भगवान के प्लान को समझ पाते हैं। यही डिफरेंस है। डिवोटी सिर्फ ये नहीं कि तिलक लगा लिया, चैंटिंग कर ली, ये डिवोटी नहीं है सिर्फ, ये तो डिवोटी बनने की एक स्टेप 1 है। रियल डिवोटी क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः, 11th कैंटो, उत्तम अधिकारी की डेफिनेशन। जो हर जगह क्या देखता है? भगवान का प्लान देखता है। हर चीज़ में भगवान का प्लान है। आपके लाइफ में बड़े से बड़ा दुख है, डिवोटी आराम से पार कर जाता है, वो सोचता है भगवान का कुछ प्लान है। मगर ये जानना काफ़ी नहीं है भगवान का कुछ प्लान है, उस प्लान को डिकोड करना भी ज़रूरी है। भगवान क्या चाहते हैं सिखाना, आप सीखो, करेक्ट करो, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम खत्म, अगर आपने करेक्शन कर ली। भी माँ एक बच्चे को थप्पड़ क्यों मारती है? तो पढ़ नहीं रहा, खेलने जा रहा है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक थप्पड़ पिटता रहेगा। बच्चा कहेगा मम्मी गंदी हैं, मुझे थप्पड़ मारती हैं। होता है, बचपन में होता है ना, बच्चे एंटी हो जाते हैं मम्मी के। एक एज आती है टीन्स की, 11, 12, 13, जब बच्चे एंटी हो जाते हैं। ये आप मेडिकली प्रूवन है। सो मम्मी गंदी हैं, ये वो हैं, मारती रहती हैं। बच्चा पागल है, उसको सोचना चाहिए मम्मी थप्पड़ मार क्यों रही हैं। और जैसे ही वो पढ़ना शुरू कर देगा, थप्पड़ बंद, पुच्ची शुरू। पुच्ची समझते हो ना? पुच्ची समझते हो आप? क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? है किस थप्पड़ मारना बंद कर देंगी और किस करने लगेंगी। नहीं, शी विल लव, स्टार्ट लविंग। ऐसे ही भगवान है। हमारी लाइफ में जो भी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सब भगवान अरेंज कर रहे हैं।
दुख आता है जब किसी के लाइफ में, भगवान के पास आता है, भगवान प्लीज दुख हटा दीजिए, हटा दीजिए। भगवान कहेंगे मैंने ही तो दुख डाला है। भगवान दुख हटा दीजिए। भगवान कहेंगे भाई दुख मैंने ही डाला है, मेरे पास क्यों आ रहा है, दुख हटा दे। मैं तो चाहता हूं तुझे दुख आए। ओके अच्छा मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी के पास आपके पास नहीं आऊँगा। बड़े अजीब भगवान है। कृष्ण को समझना संभव है। इट्स ऑलमोस्ट कृष्ण देवा भवंतम वंदे, सुना है रूपा गोस्वामी का सॉन्ग, मनमानस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरंदे। रूपा गोस्वामी उसमें लिख रहे हैं कि घटन घटन पटयसी, आपको समझना असंभव है। भगवान अपने भक्तों को दुख भी देते हैं। सुना है कभी आपने? आपने सुना हुआ कृपा देते हैं, सुख देते हैं, दुख भी देते हैं। दुख नहीं देंगे तो ठीक कैसे हो गए? जो माता पिता अपने बच्चों को थप्पड़ नहीं मारते वो गंदे बन जाते हैं। पैम्परिंग पद समझते हो? पैम्परिंग, वो लफंडर बनते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट रखते हैं, थप्पड़ मारते हैं, वो फिर आगे सक्सेसफुल होते हैं। आईआईटी में टॉप करेंगे, इधर जाएंगे। फिर बाद में आप देखो जो टॉपर्स होते हैं, ये बाद में जब इनको मिलता है रिवॉर्ड तो कहते हैं मैं अपनी लाइफ में अपने टीचर और अपने फादर मदर को थैंक करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें गलत रास्ते पे जाने नहीं दिया। जो टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं उनको याद रखा जाता है, नहीं है? नहीं, हमारे सर थे स्कूल में, पीके शर्मा नाम था, मैथमेटिक्स सर थे, बहुत पीटते थे। आजकल तो पीटना अलाउड नहीं है, बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा खून निकल आता था। मगर आज सारे जो मैं जिससे कनेक्शन में हूँ फ्रेंड से, सब उनको याद करते हैं क्योंकि सब मैथमेटिक्स में टॉप। हीरे को तराशा जाता है, नहीं, सोने को फर्नेस में रखा जाता है, तभी उसकी प्रकाश आता है बाहर। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को दुख भी देते हैं, प्रॉब्लम्स भी देते हैं। जब दुख आए, प्रॉब्लम्स आए तो डिवोटी क्या कहता है? डिवोटी भगवान के पास नहीं जाता, भगवान मुझे दुख हटा दीजिए। प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं 2nd चैप्टर में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा नहीं समाधितस्य केशव। नहीं, वो पूछ रहा है कि जो आपके डिवोटी कैसे होते हैं। प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कैसे होते हैं। जब दुख आता है तो क्या बोलते हैं वो डिवोटीज? परीक्षित महाराज के पास दुख आया, शाप मिल गया, 7 दिन में मर जाओगे। परीक्षित महाराज ने क्या बोला? परीक्षित महाराज ने बोला भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत कृपा है कि आपने मुझे दुख दिया। डिवोटी भगवान के हाथ से जो भी मिलता है उसको प्रसाद ही मानता है। सुख मिले वो भी प्रसाद, दुख मिले वो भी प्रसाद। डिवोटी चूज नहीं करता, वो तो गंदे डिवोटीज चूज करते हैं। महाप्रसाद की प्लेट आई, मुझे ये चाहिए। व्यास पूजा में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, व्यास पूजा हुई थी ना भक्ति विकास महाराज की, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था प्रसाद। तो डिवोटीज आ रहे थे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तुम चूजर थोड़े ना हो। जब तक हम चूजर रहेंगे तब तक हम इस संसार में रहेंगे, समझे? वो चॉइस, चूजर बनना, चूजर समझते हो ना आप? इफ यू आर चूजर यू आर लूजर। हम चूज नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी मिलता है। ओके, हमें अगर प्रसाद में मिठाई मिली ठीक है, कृपा है। करेला मिला तो ठीक है, ऐसी है ना। बासमती राइस मिले घी के साथ ठीक है, सूखी रोटी मिली ठीक है, ये तो चलो फिर भी कर लोगे आप। दुख मिला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रसाद है भगवान का। इस कॉन्शियसनेस से चलेंगे तो भगवान खुश होंगे। और फिर स्टेप 2 है कि भैया दुख जो प्रसाद मिला है उसके पीछे क्या कारण है, वो आपको, अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा तो भक्तों से पूछो, तभी गुरु है। गुरु इसलिए थोड़े ना फोटो लगा के बैठ गए, गुरु इसलिए नहीं होता कि दीक्षा लेके बस गुरु हमारे ये हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके गुरु भगवान भी हो जाए तब भी आप भगवान के पास नहीं जाओगे अगर भगवान की बात नहीं मानोगे तो। महाप्रभु की लीला में अद्वैताचार्य के 6 पुत्र थे। अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु के अवतार, 3 पुत्र आस्तिक, 3 पुत्र नास्तिक। भगवान का खुद का बेटा भौमासुर क्या बन गया बाद में? नरकासुर। भगवान का बेटा ही असुर बन गया। यू कैन इमेजिन, भगवान का बेटा असुर बन सकता है तो हमारी क्या, हम कौन से खेत की मूली है? हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो भगवान ना पिता है ना गुरु है। सो गुरु
गुरु क्यों होता है? गुरु होता है हमें वार्न करने के लिए, गाइड कर। गुरु के मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या सीनियर डिवोटीज सब इंक्लूडेड है। वो इसलिए कि हमें जब हमें प्रॉब्लम आएगी तो हम उनसे पूछेंगे क्यों आ रही है, तो वो डिकोड करके बताएंगे इसलिए आ रही है प्रॉब्लम, करेक्शन करो, लाइफ में करेक्ट करो, आगे बढ़ो, सीखो चीज़ें। तो ये भगवान की बहुत, इनफैक्ट कुंती महारानी तो यहाँ तक कह रही हैं कि विपदा संतु या तद्वत नहीं, ये भगवान मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहे कि जिससे आपके दोबारा दोबारा दर्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से दुख मांगते हैं, वी आर नॉट फूलिश, मगर हम भगवान से कहते हैं आप जो भी देंगे ठीक है। सो परीक्षित महाराज ने डिकोड कर लिया, परीक्षित महाराज को शाप मिला और परीक्षित महाराज ने डिकोड किया कि मुझे शाप क्यों मिला, मैंने सांप क्यों डाला उसे गले में। परीक्षित महाराज ने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा हो एक्चुअली भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि मैं भागवतम सुनूं अपने आखिरी स्टेज में और भागवतम को इस संसार में प्रकट करूं, उनका माध्यम बनूं। ही कुड अंडरस्टैंड। बस जैसे ही उनको समझ आया सुखदेव गोस्वामी आ गए, भगवान ने कहा जाओ भाई, ही अंडरस्टूड क्यों हो रहा है। सो इसको कहते हैं भक्ति। कृष्णा कॉन्शियस मतलब भगवान के प्लान को समझना। कृष्णा कॉन्शियस मतलब केवल राउंड कंप्लीट करना नहीं होता। आप राउंड्स कंप्लीट करते रहोगे पूरी लाइफ और कुछ भी नहीं होगा, आप देखना नहीं होगा। राउंड कंप्लीट करने से सुकृति मिलती है, भक्ति नहीं मिलती। सिर्फ डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट करने से तो कुछ नहीं होगा। हम भगवान का नाम लेते हैं प्रॉपर एटीट्यूड से, ध्यान से, और फिर जब नाम लेते रहते हैं तो उसका इफेक्ट भी पता होना चाहिए। उसका इफेक्ट है कि हमें भगवान का प्लान दिखाई देने लगेगा सब जगह, भगवत भावम आत्मनः, और उसे हम सीखने लगेंगे। भागवतम देख लो, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय पता ना कितने गुरु थे दत्तात्रेय के, कितने गुरु थे? किसी को पता नहीं क्या यहाँ पर, मतलब क्या? हाँ तो बोलो फिर 24 और क्या, 25 तो नहीं थे पक्का? 25 थे वैसे, 24 यहाँ पर है, 25वां साइलेंस है। बताऊँ आप पढ़ना ध्यान से, समझ आ जाएगा। बट 24 गुरु, 24 गुरुओं से सीखा उन्होंने। क्यों सीखा? नदी से, आँख से, आकाश से, पक्षी से नहीं, सबसे सीखा। वो कैसे सीख गए? हम उन्होंने 24 गुरुओं से सीख लिया, हम एक गुरु से नहीं सीख पाते। हमारी स्थिति क्या है, मतलब यू कैन इमेजिन, हम तो अपने आप को भक्त कहने लायक भी नहीं है देखा जाए तो। मतलब वेल भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, आमी तो वैष्णवे बुद्धि होले अमानी न मानत होवे तवय नीराय गामी। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं जो अपने आप को वैष्णव समझता है वो नर्क जाएगा। स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं है उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। आप कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हो आपको ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा। प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस कर रहा है गारंटीड है उसको ह्यूमन फॉर्म मिलना, बट उसमें एक लूप होल है कि भक्ति सही से कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियस कर रहा है। कृष्णा कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है वो। सो ये जो भागवतम है ना, ये भागवतम हमें प्रोसेस दे रही है और प्रोसेस के पीछे प्रिंसिपल दे रही है, हमें एक तरीका दे रही है भक्ति करने का। मगर भागवतम की यूनिकनेस है कि इस तरीके के पीछे हमें चेतना दे रही है कि हम उस तरीके को फॉलो करते करते एक लेवल पे आ जाएं कि जिससे हम भगवान के प्लान को देख पाएँ और देख पाएँ कि भगवान कैसे काम कर रहे हैं, और उस प्लान में हम असिस्ट कर पाएँ और उस प्लान में हम अपनी करेक्शन कर पाएँ। अपने आप को करेक्ट करना ही जीवन का एम है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, सुने? कहाँ सुने? सुनिए लाइन है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते कहाँ है? हाँ भागवत में, गीता में। स्वभाव अध्यात्म उच्यते 7 चैप्टर जाके देखना आप, 7 चैप्टर में स्वभाव अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी भगवान डिफाइन कर रहे हैं। अध्यात्म क्या है? स्वभाव को बदलना। सो अगर आप टेंपल में डिवोटी देखते हो 10 साल से भी वही सेम है। 10 साल पहले भी गुस्सा, अभी भी गुस्सा। 10 साल पहले भी गाली, अभी भी गाली। 10 साल पहले भी मन नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा। इसका मतलब वेस्ट हो गया प्रोसेस, इट्स वेस्ट।
सो अपने आप को चेंज करो। भगवान चाहते हैं हम चेंज हो, नहीं माता पिता चाहते हैं कि बच्चा चेंज हो, है नहीं, यही चाहते हैं ना माता पिता, यही है ना। जैसे जब बच्चा बड़ा हो रहा है माता पिता चाहते हैं मैच्योर बने, अच्छा बने। अगर वो अच्छा नहीं बन रहा होता तो काउंसलिंग कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, है नहीं। कोचिंग करके भी सही नहीं बन रहा तो फिर तो भैया कोचिंग भी बेकार, काउंसलिंग भी बेकार, कुछ करना पड़ेगा इसका। सो कोचिंग काउंसलिंग क्या है भक्त कृष्णा कॉन्शियस में? कोचिंग है ये क्लास, साधु संघ। काउंसलिंग क्या है? गुरु। अब मम्मी पापा जो बच्चा बिगड़ गया उसको कहेंगे भैया देख ऐसा है, अभी तुझे कुछ लोग तुझे ये खाना खाना है, ये काम करना है, जो हम कहेंगे वैसा करना है। वो रूल्स रेगुलेशन भक्ति के, चैंटिंग। अल्टीमेट रिजल्ट है स्वभाव, नेचर बदले उसकी। दैट्स द होल आइडिया। सो परीक्षित महाराज कुड अंडरस्टैंड, उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। हम लोग भी रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए। अभी तो हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियल प्लेटफॉर्म पे आए। हमारी भी हेल्प होगी, दूसरों की भी होगी, एटलीस्ट दूसरों की नहीं होगी, हम खुश होंगे। एवं प्रसन्ना मनसो, हम हैप्पी हो जाएंगे अगर हम चेंज हो गए तो। और हम ये आत्मा सुप्रसिद्धति, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। अदरवाइज भक्ति पूरी लाइफ करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब कर सकते हैं हम, पड़े रह सकते हो भक्ति में, पड़े रहना समझते हो ना, यू कैन एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। पूरी लाइफ हो सकता है आप चैंटिंग कर जाओ, मंदिर में रह लो, थोड़ी सर्विस कर लो, बट वो एम नहीं है वो लाइफ का। दैट्स नॉट द एम। सिर्फ रहना मंदिर में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना एम नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करना एम है। सो दैट्स व्हाट इज दिस वर्स ऑल अबाउट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? माइक माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि Loud, आपने loud, loud. हरे कृष्णा। सो अगर कोई बार बार गलती करने के बाद भी अगर नहीं सुधरता है, उसमें सुधार नहीं आता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है फिर भगवान, पहले थप्पड़ मारा तो मुक्का मारेंगे। भगवान छोड़ेंगे नहीं, आप भगवान को छोड़ोगे वो नहीं छोड़ेंगे। पुत्र कुपुत्र स्यात्, माता ना कुमाता स्यात्। सुना है? पुत्र गंदा हो सकता है, इस संसार में कोई माँ गंदी नहीं होती। पुत्र माँ को छोड़ देगा, माँ कभी भी पुत्र को नहीं छोड़ सकती, है ना। सो भगवान कुछ ना कुछ करके आपको चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए हम नहीं बदल पा रहे तो भगवान किसी डिवोटी को भेजेंगे, वो आपको समझाएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो भगवान किसी डिवोटी को कहेंगे इसको गाली दे, तो गाली पिटेगी आपको। साले साले कमीने क्या कर रहा है, आप कहोगे मुझे गाली दे रहे हैं, मंदिर में छोड़ के जा रहा हूँ। फिर भी नहीं हुआ, गाली के पर्पस से थी। फिर आप चले गए दूसरे मंदिर, यार ये तो गंद है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे भगवान कहेंगे गाली से कुछ नहीं हुआ, डिवोटी से कहेंगे इसको पीटो जरा, तो पॉलिटिक्स होगी आपके अगेंस्ट। हो गया यार ये भी मंदिर गंदा है, मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, सब गंदे हैं। बस ये समझ नहीं आएगा मैं ही गंदा हूँ, ये समझ आता रहेगा सब गंदे हैं। भगवान कहेंगे अब कुछ करना पड़ेगा यार, ये अभी भी नहीं मान रहा। तब भगवान आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देना शुरू करेंगे, बीमारी कुछ ना कुछ कर देंगे। उससे भी नहीं मानोगे फिर टॉर्चर करेंगे। करते हैं वो, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो। फिर आपको इस कंडीशन में ले आएंगे कि आपको मानना पड़ेगा। भगवान मनवाना चाहे तो मनवा ही लेंगे। सो कुछ ना कुछ करके 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 फिर भी नहीं मानोगे तो शादी करा देंगे। चलो भैया फाइनली अब तो बीवी पीटेगी इसको, अब संसार पीटेगा। ठीक है ना, ये बहुत लाइटली ले रहा है ना। अब संसार में जाओ, वो लोग सिखाएंगे, असुर लोग सिखाएंगे। वो पिटोगे फिर बच्चा पीटेगा, काम करना पड़ेगा, तब ये सीखेगा भैया कि क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान के अपने तरीके होते हैं। बट ही विल टीच अस स्लोली एंड स्टेडीली। इस तरह नहीं सिखाएंगे कि आप पागल हो जाओ। भगवान को पता है कितना टाइट करना है, कितना लूज करना है, सिखा देंगे मगर। ठीक है, बट इसमें पॉइंट है, आपको रेडी होना चाहिए सीखने के लिए। अंदर से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ। सीखना नहीं चाहते तो प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, फिर गृहस्थ में आ जाओगे। फिर भी नहीं सीखना चाहोगे तो भगवान कहेंगे चलो इस जीवन छोड़ देते,
फिर आप भक्ति छोड़ के बैठ जाओगे, कुछ नहीं यार बकवास है। फिर नेक्स्ट लाइफ में भगवान कहते हैं चलो एक जीवन करने दो, या तो बुढ़ापे में नेक्स्ट लाइफ में फिर दोबारा से शुरू करेंगे क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई जीवन है, उसमें क्या है, अगले जीवन में सिखा देंगे एक लाइफ थोड़े ना है। भगवान के एंगल से तो करोड़ों जीवन जी लिए, एक और बीत गया तो क्या हो गया। यू सी, इनफैक्ट जो भी हम भक्ति कर रहे हैं ना, गोलोक जाने के लिए नहीं कर रहे, वो इसमें यहाँ से कोई गोलोक नहीं जा सकता, मतलब मैं तो नहीं जा सकता, आपका पता नहीं मैं क्या बोलूँ बताओ। हम भक्ति कर रहे हैं अगली लाइफ के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जिस तरह से हमारी प्रोग्रेस है वो देखते हुए, क्योंकि पूरे जीवन भक्ति करके एक गंदी हैबिट हटाना भी बहुत बड़ा, बहुत प्रयास, बहुत बहुत एफर्ट्स चाहिए होती हैं। इतनी आसानी से अपने आप को चेंज करना आसान नहीं होता, रियली नहीं। जो भक्ति कई साल कर चुके हैं उनको पता है इतना इजी नहीं है। प्रोसेस इजी है मगर एप्लीकेशन डिफिकल्ट है, प्रभुपाद ने बोला है एप्लीकेशन डिफिकल्ट। सरेंडर्ड रहेंगे तो, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप ये बोलते रहो भगवान आपकी बहुत कृपा है, तो भगवान कुछ ना कुछ करके चेंज कर देंगे बस। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे तो फिर केस थोड़ा खराब हो जाएगा। क्लियर है? या माइक देना जरा। Hare Krishna. ओके फाइन, यू स्पीक। Prabhuji, whatever questions we asked, we will get one classic answer. That is, it happened like this because will of the Lord. So it is everything is happened because of the will of the Lord, or it is any other reason, or there is any logic behind any भगवान की activities. इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा क्यों है वो हमें डिकोड करना है। हमें समझना है भगवान ने इच्छा क्यों की। सिर्फ ये कहना भगवान की इच्छा से है वो तो फिर बेकार हो गया ना। भगवान ने क्यों इच्छा की आपके साथ ऐसी, वो आपको साधु से देखना है। साधु गुरु शास्त्र है ही इसलिए, डीकोड समझते हो ना, डीकोड करने के लिए ही है, वरना नॉलेज बेकार है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ओके शास्त्रों में ऐसा है, ये है, ऐसा ऐसा, ओके इसलिए हुआ। नहीं समझ आ रहा गुरु साधु, बस यही है और क्या है। Why Parikshit Maharaj acted in this way? Is कि भगवान चाहते थे कि भागवतम को प्रकट करना है इस संसार में, इसलिए हो गया। so like every activities has this is the only reason behind every activities. सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। Like Jivas come into this material world, it is because of the जीवास कमिंग इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, भगवान की इच्छा तो इन्वॉल्व है ही, मगर भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी इच्छा थी इसलिए भगवान ने इच्छा की। बच्चे की इच्छा चॉकलेट खाना, मम्मी कहेंगी नहीं दांत खराब हो जाएंगे, बच्चा ये रो रहा है, बच्चा रोएगा चॉकलेट चाहिए, मम्मी कहेंगी खा ले। दोनों की इच्छा थी, मम्मी की इच्छा थी चॉकलेट देना, भगवान उसकी इच्छा थी चॉकलेट खाना, मगर मेन इच्छा किसकी थी, बच्चे की। बच्चे ने फोर्स कर दिया मम्मी को इच्छा करने के लिए। हमारी इच्छा थी हम संसार जाएंगे, घूमने जाएंगे, ऐसे अमेरिका घूमने नहीं आते, बड़ा सुंदर है, दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा नहीं जाना है, भगवान ने कहा ठीक है भी जाओ। यू सी दैट सर्व कारण कारणम, कारण के पीछे कारण है, इमीडिएट कॉज नहीं है, रिमोट कॉज है वो। दैट्स हाउ, मुख्य कारण नहीं है, गौण कारण है संस्कृत में। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो आपने बताया प्रभु जी, जो जन्म लिया है उन लोगों को प्रॉब्लम्स आता है, उसका रेक्टिफिकेशन भगवान से। लेकिन जो जन्म से ही, जैसे लंगड़ा, लूला, बहरा, पैरालिसिस या तीनों सब कुछ होते हुए जो पैदा होते हैं, उसका कारण क्या है? ये पास्ट जन्म कर्मा या भगवान का? पाँच जन्म में उसने किसी का हाथ तोड़ा है तो उसको टूटा हुआ हाथ मिलेगा। किसी ने अंधा किया, किसी को अंधा पैदा, ये धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। He did something in the past life, we know from Mahabharata. So past life reactions birth से आ जाते हैं। Looks cruel, मगर ऐसा ही है सब past lives। पूर्व जन्म कृतम पापम, आयुर्वेद, पूर्व जन्मों के पापों के द्वारा ही बचपन से ही डिजीज आती है। हाँ, सब पिछले जन्मों में उसने, भ्रूण हत्या उसकी होती है जो कि पिछले जन्मों में जिसने गाय की हत्या की है उसकी भ्रूण हत्या होगी, ये शास्त्रों में लिखा है। उसको सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देगी 1000 जन्मों तक,
अबॉर्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। कोई किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस दुख के लिए, हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपने दुख के लिए। यही तो समझ नहीं आता, ये समझ लिया तो आप मुक्त हो गए। यही तो प्रॉब्लम, टेम्पल में ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, आप खुद ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो बस। कोई कुछ नहीं करता, हम ही अपने दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। गीता यही है, जिस दिन ये समझ आ जाएगा उस दिन 50% काम पूरा हो गया। उस दिन हम ना किसी को ब्लेम करेंगे, ना निंदा करेंगे, हम स्वीकार करेंगे भगवान मेरे ही कर्म है, दैट्स ऑल। भगवान बड़े खुश होंगे। यही है मतलब इस संसार में जो ये जो वर्ड है ना विक्टिम, विक्टिम कुछ नहीं होता, सब अपने ही पाप भुगतते हैं। फिलॉसफी तो यही है। इट लुक्स बैड मटेरियलिस्टिक को, बट ऐसे ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, the different acharyas given different commentaries, like Vishnu Chakravarti says something Prabhupada, because there is a difference about There is a difference. Dhritarashtra thoughts actually. So, but we call it as a Guru Parampara, but because of different opinions, thoughts, can we consider it real Guru Parampara, or how to take that point? नहीं, डिफरेंट आचार्य डिफरेंट कमेंट्रीज देते हैं, कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट भी बोलते हैं। या एग्जैक्टली। विश्वनाथ ठाकुर ने जीवा गोस्वामी के कुछ पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं किए, बलदेव विद्याभूषण जी ने एक्सेप्ट नहीं किए कुछ पॉइंट्स। तो आपको लगेगा यार अपने हमारे आचार्य लड़ रहे हैं, बड़े अजीब सी बात है। सो बट एक्चुअली वो अपोजिट नहीं है, वो परोक्षवाद है। यू अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्रेमी प्रेमिका को कहेगा आई लव यू, ठीक है? तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? आई लव यू का मतलब क्या है? एक लवर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहेगा, सॉरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कहेगा कि आई लव यू, उसका मतलब क्या है? प्यार करता हूँ, ठीक। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहे आई लव यू, उसका मतलब क्या है? नहीं, वो कहेगी पागल हो गया, आई लव यू कहाँ से आ गया भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? यही होगा। इसका मतलब कुछ और है शादी के बाद। सो सेम स्टेटमेंट है बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। उसी प्रकार आचार्य जो है परोक्षवाद, कुछ आचार्य डायरेक्ट मीनिंग निकालते हैं, कुछ आचार्य इनडायरेक्ट मीनिंग। उल्टा लगता है मगर दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कमेंट्रीज नहीं पढ़नी चाहिए अगर समन्वय करने की शक्ति नहीं, अगर हार्मोनाइज नहीं कर सकते तो पूरा ही कन्फ्यूजन आ जाएगा। सो इसलिए शुरू में प्रभुपाद बुक्स पढ़ें, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब माइंड मैच्योर होगा तो फिर किसी के अंडर रह के हम अगर पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी, तो वो दिखा देंगे हाँ इन दोनों को हार्मोनाइज कर सकते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही चीज़ है। ऐसे मतलब हमारी मध्वा गौड़िया संप्रदाय है। मध्वाचार्य की फिलॉसफी पढ़ लो तो गौड़िया फिलॉसफी पढ़ लो, टैं। आप कहोगे यार आप मध्वा संप्रदाय कह रहे हो, मध्वा वाले तो हमें मानते ही नहीं गौड़िया। वो कहेंगे तुम कहाँ हमारे अंदर आ रहे हो, हमारी तो 1000 चीज़ें अलग हैं। तुम्हारे ऑल्टर में भीम का है, मुख्य प्राण का है तुम्हारे ऑल्टर में, उनके बिना तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और राधा क्या कर रही है, हम तो मानते ही नहीं राधा को। सो अब आप कहोगे यार मध्वा, हम तो दिखाते ना लोगों को मध्वा गौड़िया संप्रदाय, अब क्या होगा? किसी को पता है वो आपको उड़ा देगा। सो बट हम उसको समन्वय भी कर सकते हैं, अगर नॉलेज है तो कर सकते हैं। एक भक्ति साइंस ठाकुर के डिसाइपल थे सुंदरानंद विद्या विनोद, और उसी लाइन में एक और डिसाइपल आए थे, नाम भूल गया मैं, उन्होंने इतनी मोटी बुक लिखी है, इट्स लाइक 2000 पेजेस, 10-20 साल लगाकर। उस बुक का नाम है नाम भूल गया, मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने मध्वा और गौड़िया संप्रदाय का समन्वय किया है अकॉर्डिंग टू हिम। तो हमें पता होगा तो हम बता पाएंगे नहीं अलग अलग नहीं है, एक ही है, बट डिफरेंट एंगल से देखा जा रही है चीज़ें, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है। सो समन्वय कर सकते हैं तो पढ़ें, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, दैट्स हाउ इट गोस। पढ़ना बहुत अच्छा है, शुरू में पहले प्रभुपाद बुक्स अच्छी तरह पढ़ लें, चैंटिंग कर लें, कोई गाइड भी होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन आएगी, सॉल्व कैसे करोगे, फिर माइंड अजीब सा हो जाएगा। सो अच्छा है, सब डिवोटीज हैं, इट्स नॉट बैड, या डिवोटीज। संप्रदाय
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परीक्षित महाराज हमेशा भगवान को ढूंढते रहते थे, है ना? नहीं ढूंढते रहते थे, ढूंढते नहीं रहते थे, वो तो बचपन में वो ढूंढ रहे थे कहाँ है कृष्ण, जब पैदा हुए थे। वो जानने की उनकी इच्छा थी कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो जो जैसा उन्होंने गर्भ में देखा था, तो उनकी ऐसी इच्छा थी। तो मैं समझा कि भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, भागवतम के रूप में उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। नहीं, लेकिन बट वाई ऑन द कॉस्ट ऑफ डेथ, सच ए क्रूअल डेथ? क्रूअल डेथ थोड़ा ना, श्राप लगा ना तो। अरे शाप इज अ फेस्टिवल, यही तो प्रॉब्लम है हमारे में। आप जीना चाहते हो मरना चाहते हो, बताओ कौन जीना कौन चाहता है, बताओ, और मरना कौन चाहता है? असली डिवोटी कुछ नहीं चाहता, ना मरना ना जीना, भगवान आपकी जो इच्छा है। हम चूज़र नहीं है, समझे? हम चॉइस नहीं कर सकते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चॉइस करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ड आप जा ही नहीं सकते अगर आप चूज करोगे। आप जहाँ भगवान रख रहे हैं वहाँ सेटिस्फाई हो। सो बाय एट द सेम टाइम यमुनाचार्य जी का कह रहे हैं, कृष्णा तो दिए पाद पंकज पंजरांत, भगवान अद्यैव, अभी मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अभी मेरा माइंड लगा हुआ है, मृत्यु के समय पता नहीं क्या होगा, माइंड लगा होगा या नहीं लगा होगा। परीक्षित महाराज बहुत खुश थे, शाप मिल गया उनको कि यार जब बूढ़े होंगे माइंड लगेगा नहीं लगेगा, चलो मुझे कन्विंस्ड हूँ 7 दिन बाद मर जाऊंगा मैं, तो प्रिपेयर कर लेता हूँ अपने आप को। प्रिपरेशन का टाइम भी मिल गया 7 दिन। सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, बेस्ट टीचर। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज नॉट एट ऑल अनॉयड। तभी तो सुखदेव गोस्वामी के भागवतम सुनने के बाद परीक्षित महाराज की माँ उत्तर आई उनके पास कि मुझे दोबारा भागवतम सुननी है। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, थोड़ा टाइम है, तक्षक अभी आएगा, मुझे सांप अभी थोड़ा टाइम है, आने वाला है। तो उन्होंने दोबारा से बृहद भागवत अमृत सुनाई। ही वॉज सो हैप्पी। सो वो क्रूअल कुछ नहीं है, भगवान जो भी करते हैं सब बहुत स्वीट होता है। वो क्या है, वो वल्लभाचार्य ने सॉन्ग लिखा है मधुराष्टकम, सुने? मधुराष्टकम पढ़ना, उसमें वल्लभाचार्य लिख रहे हैं सृष्टि मधुरम, क्या है उसके बाद, ओहो, सृष्टि मधुरम, हाँ दृष्टि नहीं है षष्टि मधुरम। भगवान की क्रिएशन बहुत मधुर है, भगवान का दंड बहुत मधुर है। तो ही वॉज ब्लेस्ड, ये हो गया। हमें शाप नहीं मिल रहा, हमारा दुर्भाग्य है, सड़ सड़ के मरेंगे हम, पता नहीं क्या होगा, भगवान को भूल ही जाएंगे। जैसे जितनी जल्दी यहाँ से निकले उतना अच्छा है ना। यहाँ मंदिर में रहना भी अच्छा नहीं है, ये मंदिर भी भौतिक जगत में ही है, ये हम भूल जाते हैं ना। सो यहाँ भौतिक जगत से एस्केप करना जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है भाई। और भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया परीक्षित के लिए, और उससे अच्छा बात क्या है? यू गॉट द पॉइंट? यही भागवतम की विजन यही है। प्रैक्टिस मुश्किल है बट ऐसा ही है, इट्स ऑल प्रैक्टिस इज डिफिकल्ट, थोड़ी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। ओके, कुछ कहना है? और दिनेश, माता जी कुछ नहीं पूछती क्या? माता जी यहाँ पे क्या बहुत वो रहती हैं क्या? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीक़े से समझाया आपने। ये आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरे को लगता है भगवान तो बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर है, ही इज ट्राइंग टू ट्रेन अस, बट we are so much adamant that we don't want to submit to him or surrender to him. That's true. So दोनों के बीच में कंपटीशन में most of the time we are only winning. हाँ यही है एक्चुअली। इसका प्रूफ क्या है कि हम बहुत गंदे हैं? इसका प्रूफ ये ऑल्टर पे जो नीचे आचार्यों की फ़ोटो लगी है ना, ये प्रूफ है। इतने सारे आचार्य आ गए तब भी कुछ नहीं कर पाए हमारा। You know, it takes entire spiritual world एक जीवात्मा को निकालने के लिए। एक गुरु नहीं सफिशिएंट होता, पूरी परंपरा उठाती है तब भी शायद ना निकल पाए। यू आर राइट, इट्स मनुष्य नाम सहस्रेषु, बट साधु संग होगा, कोशिश करेंगे तो शायद
होप अगेंस्ट होप। और हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का उसमें देखा तो पूरा फ्लड ऑफ लव हैज़ कम, ऐसा हम पढ़ते हैं। जो भी नित्यानंद हैं। का नाम ले लिया तो पूरा वो पागल हो गया है, या तो ऐसा भी पढ़ते हैं हम, ही विल अटेन कृष्ण प्रेमा। हाँ, वो उस टाइम हुआ था, अब नहीं होता। अब तो हम 1000 बार बोल चुके निताय गौर है वही। उस टाइम तो उनकी पर्सनल प्रेजेंस थी, देयर इज अ डिफरेंस। तो उन्होंने जानवरों को भी करा दिया। अब वो नहीं है और नहीं भी, बट दे लेफ्ट अ प्रोसेस। अगर प्रोसेस सही से फॉलो करेंगे तो उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब पॉसिबल है। अदरवाइज तो निताय गौर हमारे लिए नामाभास ही रह जाएगा। सो हम भी पढ़ते हैं, नहीं उस टाइम पे कितना कुछ हो गया, ट्राइबल्स को भी मिल गया, ऐसे ही प्रेम हो गया। अब तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। बंगाल में कितने लोग निताय गौर बोलते रहते हैं, 24 घंटे लीला कथा चलती है, अष्टप्रहर कीर्तन चलता है, उन्हीं वो तो पूरी रात ही बोलते रहेंगे निताय गौर करते रहेंगे। एक नंबर के थर्ड क्लास लोग। सो प्रभुपाद की यही टीचिंग है कि नाम लेना एक अलग बात है और नाम को अनुभव करना एक अलग बात होती है। अब नाम अनुभव कैसे होगा, जब हम पूरा पैकेज करेंगे, फिलॉसफी, प्रैक्टिस, प्योरिटी, सिंसेरिटी, जब सब मिला के होगा तब नाम अपना इफेक्ट देगा, वरना नाम इफेक्ट नहीं देगा। वो भी भगवान की कृपा है कि इतनी जल्दी भगवान हमें अनुभव नहीं दे रहे, क्योंकि जल्दी अनुभव आ जाएगा तो अहंकारी बन जाएंगे हम, है नहीं। अगर मान लीजिए आपने निताय गौर बोला, आपको प्रेम मिल गया अभी, तो क्या होगा? तो या तो आप घबरा जाओगे, जैसे वो मछुआरा नहीं घबरा गया था। मछुआरे ने महाप्रभु को सोचा, उसको प्रेम मिल गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो गया, भूत घुस गया मेरे अंदर। एक डिवोटी था, वैसे एक डिवोटी था, वो चैंटिंग करता था बहुत साल पहले, तो उसको अंदर से ना, उसको खैर मेंटल प्लेटफॉर्म पे था, उसको अंदर से भगवान का स्मरण आने का 24 घंटे, और अच्छा लगने लगा। वो डर गया एक्चुअली, उसको वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, मुझे कुछ हो गया है। सो या तो आप पागल हो जाओगे या अहंकारी हो जाओगे, मुझे प्रेम मिल गया। सो भगवान नहीं चाहते कि हमें जल्दी जल्दी प्रेम मिल जाए, वो भी कृपा है। भगवान रोक के रखते हैं, टाइम पे देंगे। जब लोहा गर्म होगा तभी, उससे पहले मारोगे तो मारते रहोगे, कुछ नहीं, लोहा टूट ही जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, खराब ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, हथौड़ा ही टूट जाएगा। सो अभी तो नहीं है, अभी तो फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली कहाँ है बताओ आप, कहाँ है, कौन निताय गौर? नित्यानंद त्रयोदशी चली गई, हम सेम है, मैं तो सेम ही हूँ, I didn't really change. So, तभी हमारे आचार्य नामाभास और शुद्ध नाम का कॉन्सेप्ट लाए थे, है ना। अभी हम नामाभास में हैं, अभी सिर्फ आभास चल रहा है, शुद्ध नाम नहीं है अभी हमारा। वो प्योरिटी से आएगा, टाइम लगेगा, टाइम टेक्स टाइम एंड हम्बलनेस, सिंसियरिटी, प्योरिटी, डिसिप्लिन, रेगुलेशन, सब कुछ चाहिए, पूरा पैकेज चाहिए। खाने में नमक नहीं हो तो सही होगा नहीं ना, खाने में दाल नहीं हो तो भी कंप्लीट नहीं है, पानी नहीं हो तो भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, that's it. Okay, that's it, how it goes. Thank you. Thank you very much, Prabhuji. Wonderful class. So let us thank Prabhu by chanting loudly once Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.